کیلاش نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہر سال ٹھنڈ پڑتی تھی، لیکن اس بار ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ دسمبر کا مہینہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ برف پڑنے لگی۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گھروں کی چھتیں صبح برف سے ڈھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ ٹھنڈ کا موسم امیروں کے لیے تو بہت ہی سہانا ہوتا، لیکن غریبوں کے لیے مصیبت سے بھرا تھا۔ یہ ایسے ہی ایک غریب گھر کی کہانی ہے۔ سلیم اپنی بوڑھی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ سلیم گاؤں والوں کے کھیتوں میں کام کر کے کچھ پیسے کماتا تھا، جس سے 2 وقت کی روٹی مل جاتی۔ سلیم کی بیوی گھر کا کام کرتی اور کنویں سے پانی بھر کر لاتی۔ دسمبر کا مہینہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ برف پڑنے لگی۔ گھر میں صرف ایک ہی موٹا کمبل تھا جو بچیوں پر ڈال کر انہیں سلا دیا جاتا تھا، اور ایک کمبل بوڑھی ماں کے لیے تھا۔ سلیم اور اس کی بیوی رات بھر سردی سے کانپتے رہتے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سنیں جی، آج گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، 2 ہی روٹیاں بن پائی ہیں اور گھر کا راشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس بار سردی نے تو حد ہی کر دی ہے۔ ٹھنڈ کے مارے کھیتوں پر کام نہیں ہو رہا۔ آج مالک تنخواہ دیں گے تو آتے ہوئے آٹا اور راشن لیتا آؤں گا۔ بیٹا، 3 مہینے سے ہم نے مکان کا کرایہ نہیں دیا۔ تم جانتے ہو نا مالک مکان کتنا بدلی حال آدمی ہے۔ اگر اس بار بھی ہم نے کرایہ نہ دیا تو وہ گھر خالی کرا دے گا۔ ہاں امی، مجھے بھی اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ ارے بھائی، تم لوگوں نے 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیا، جلدی سے کرایہ دو، نہیں تو اپنا بندوبست کر لو۔ بھائی صاحب، سردیوں کی وجہ سے کام کے صحیح پیسے نہیں مل رہے۔ ہم اس ٹھنڈ کے موسم میں کہاں جائیں گے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں، مجھے آج ہی کرایہ چاہیے۔ تمہارے پاس آج شام تک کا ٹائم ہے، نہیں تو اپنا بندوبست کر لو۔ بیٹا، دروازے پہ کون تھا؟ ماں جی، مالک مکان آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے شام تک پیسے چاہیے ورنہ گھر خالی کر دو۔ اس سردی کے موسم میں ہم معصوم بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ بیٹا، اب ہم کیا کریں گے؟ شام تو ہونے ہی والی ہے۔ میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، شاید سے وہ کچھ مدد کر دے میری۔ یہ کہہ کر سلیم اپنے دوست کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ یار، اس بار سردی زیادہ پڑنے کی وجہ سے کھیتوں پر کام صحیح سے نہیں ہو رہا، اس لیے مالک کم پیسے دے رہا ہے۔ میں نے 3 مہینے سے مکان کا کرایہ نہیں دیا۔ مالک مکان گھر خالی کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اگر تم کچھ پیسے مجھے ادھار دے دو تو کچھ مہینوں کے بعد میں تمہیں یہ واپس کر دوں گا۔ یار، پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، میں تیری مدد ضرور کرتا۔ دوست، تجھے تو پتا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے لوگوں کا بازار میں آنا جانا بہت کم ہو چکا ہے۔ میرا خود کا خرچہ نہیں نکل رہا۔ اسد کی بات سن کر سلیم مایوسی سے اپنے گھر واپس لوٹ آیا اور گھر والوں کو بتانے لگا۔ اماں جی، دوست نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ بیٹا، اب ہم کیا کریں گے؟ شام تو ہونے ہی والی ہے۔ اس سردی کے موسم میں ہم معصوم بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ ہاں سلیم بھائی، کرایہ کا بندوبست ہوا؟ بھائی، میں نے کوشش کی مگر پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا۔ نہیں یار، اب تو حد ہی ہو گئی۔ اپنا سامان سمیٹو اور مجھے گھر خالی کر کے دو۔ بھائی صاحب، مہربانی کریں، اس سردی کی رات میں ہم کہاں جائیں گے؟ یار تم جہاں بھی جاؤ، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے میرا گھر خالی چاہیے۔ سلیم پریشانی میں اندر آیا اور اپنے بیوی بچوں کو سامان باندھنے کا کہا۔ منی کی ماں، گھر کا ضروری سامان پیک کرو، ہمیں یہ گھر ابھی چھوڑنا ہوگا۔ ارے بیٹا، مگر اتنی رات کو ہم کہاں جائیں گے؟ رکو، میں بات کرتی ہوں مالک مکان سے کہ ہم پہ تھوڑا ترس کھائے۔ ماں جی، کوئی فائدہ نہیں ہے، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، وہ نہیں مانے گا۔ بہو، بچوں کے ضروری کپڑے اور بستر بھی باندھ لو۔ اچھا ماں جی۔ بیچارہ سلیم اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھٹرتی ہوئی سردی میں سڑک پر آ گیا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے سڑک پر چلنے لگے۔
अभी बेचारे पैदल चल ही रहे थे कि अचानक मौसम बिगड़ा, बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। या अल्लाह, अब हम कहाँ जाएं? इतनी तेज बारिश में कहाँ ठिकाना ढूंढें? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बेटा, मगर इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? अरे अरे मानो, तुम कहाँ जा रही हो? रुको। बिल्ली भागते हुए एक बड़ी सी वीरान हवेली में घुस गई। रुको। ओहो, इतना बड़ा घर। मामा बाबा देखो, मेरी मानो उस बड़े से घर में चली गई। इतना बड़ा घर? मेरा ख्याल है जब तक बारिश हो रही है हमें इस हवेली में ही रुक जाना चाहिए। लेकिन माँ जी, हम किसी के घर ऐसे कैसे जा सकते हैं? बेटा, हम इनसे जाकर इजाजत ले लेते हैं कि जब तक बारिश हो रही है हमें थोड़ी देर रुकने दें। मुन्ने की अब्बा, क्यों ना हम यहीं रुक जाएं? वैसे भी हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। चलो चलते हैं। लगता है इस घर में कोई नहीं है। इस घर की हालत देखकर तो लगता है घर में काफी अरसे से कोई नहीं आया। जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी किसी के घर रुकना अच्छी बात नहीं। मुन्नी की माँ, जब तक तुम बैठने की कोई जगह साफ कर दो। 2 दिन तक बारिश होती रही। जब 2 दिन के बाद बारिश रुकी तो चलो शुक्र है आज तो बारिश रुक गई। अब हम यहाँ से चले जाएंगे। मुन्नी की माँ, हमें ये घर अभी छोड़ना होगा। यार जल्दी चल यहाँ से, तुझे पता है यहाँ भूत रहते हैं और 10 साल से यहाँ कोई नहीं आया। यार जल्दी चल यहाँ से। क्या ये घर 10 साल से खाली पड़ा है? लेकिन हम तो यहाँ 2 दिन से रह रहे हैं, हमने तो यहाँ कोई भूत नहीं देखा। मुन्ने की अब्बा, क्यों ना हम यहीं रुक जाएं? वैसे भी हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बहू सही कहती है, जब तक तुम्हारी कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाती हम यहीं रहते हैं। इस तरह वो सब इस हवेली में रहने लगे। सलीम की बीवी ने हवेली की अच्छी तरह सफाई की, सारा कचरा उठाकर बाहर फेंका और वो सब खुशी से वहाँ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद हवेली के करीब मोहल्ले के कुछ बच्चे रात के वक्त गली में क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक से उनकी बॉल हवेली में चली गई और सलीम की बीवी ने वो बॉल देख ली। ओहो यार, बॉल तो उनके घर में चली गई। तो क्या हुआ? आओ जाके ले आते हैं। ये तो अंदर आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? हम नहीं, अब भूत करेंगे जो कुछ भी करेंगे, बस तुम सब देखते जाओ। ये कहकर दादी अपने बाल खोले खिड़की के सामने जाकर बैठ गई, बच्चों को डराने लगी। इतने वीरान घर की खिड़की में एक बूढ़ी औरत को इस तरह बैठे देखकर सारे लड़के डरकर भाग गए। आपने तो बचा लिया। हवेली में रहते अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि 2 डाकू चोरी की नीयत से हवेली की तरफ बढ़े। यार तुझे पता है ये जो सामने वाली हवेली है ये कई साल से खाली पड़ी है
और मैं इस पे 12 दफा चोरी भी करके आ चुका हूँ। यहाँ के लोगों को लगता है यहाँ पे कोई जिन भूत है, लेकिन असल में यहाँ पे कोई नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आओ मिल के चोरी करें। डाकू हवेली के पीछे से सीढ़ी के जरिए अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ सलीम और इसके घर वाले गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे के खुलने की आवाज से उनकी जाग हो गई। उन्होंने खिड़की के नीचे देखा कि 2 डाकू सीढ़ी के जरिए ऊपर आ रहे हैं। ये डाकू तो अंदर आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, मुन्नी की गुड़िया लेकर आओ। सलीम ने गुड़िया एक रस्सी से बांधकर रस्सी नीचे फेंक दी। रस्सी पर गुड़िया लटके देखकर डाकुओं की सीटी गुम हो गई। भूत 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 भूत। इस तरह कई महीने गुजर गए। जो भी हवेली की तरफ आता, सलीम और उसके घर वाले उन्हें डराकर भगा देते। गांव वालों को अब यकीन हो गया था कि हवेली में वाकई कोई जिन भूत रहते हैं और उनमें खौफ बढ़ चुका था। अहमद भाई, अब तो हमारा इस गली से गुजरना मुश्किल हो गया है। हवेली से अजीबो गरीब आवाज आती है, ऐसी आवाज जो कभी हमने नहीं सुनी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक रात करमू चौकीदार इस हवेली के सामने से गुजरा। हवेली के अंदर से रोशनी आ रही थी और अंदर से इंसानों और बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थी। चौकीदार करमू समझ गया कि यहाँ कोई भूत नहीं बल्कि इंसान रहते हैं, लेकिन वो वहाँ से चला गया। जब सुबह हुई तो करमू गांव वालों के पास गया और वहाँ जाकर उसने गांव वालों को सारी बात बता दी। अहमद भाई, क्या वाकई कोई हमें बेवकूफ बना रहा है? करीमो तो यही कह रहा है कि ये बात गलत है। गांव वाले जमा होकर पुलिस ऑफिसर के पास गए। करमू ने गांव के पुलिस ऑफिसर को जमा किया और हवेली पर छापा मारने को कहा। पुलिस ऑफिसर गांव वालों की बात मान गए और रात को सबने एक साथ हवेली जाने का फैसला किया। जब रात हुई तो चौकीदार गांव वालों और पुलिस के साथ हवेली की तरफ बढ़ा। पुलिस ने हवेली को घेर लिया और अंदर दाखिल हो गई। अंदर जाकर देखा तो वो हैरान रह गए। इतनी शानदार और साफ सुथरी हवेली जैसे कोई यहाँ रहता हो। सामने एक बड़ा हॉल था जहाँ पर सलीम और उसके घर वाले बैठे थे। पुलिस और गांव वालों को देखकर सलीम के होश उड़ गए। अच्छा, तो तुम लोग थे जो इतने अरसे से लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। अब तो तुम सीधा जेल में जाओगे। नहीं नहीं, हमें माफ कर दे, हम मजबूर थे। अब तो तुम सीधा जेल में जाओगे। कर लो इन सबको, कर लो इन सबको। हमें माफ कर दे, हम मजबूर थे, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब तो तुम सीधा जेल में जाओगे। नहीं नहीं बेटा, हमारी बात का यकीन करो, हम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे, हम तो मजबूर लोग हैं। पुलिस अभी इन्हें पकड़ने ही वाली थी कि जोर से हवा चली और दरवाजा खुला। कुर्सी खुद ब खुद चलने लगी। एक जोरदार झोंका आया और सामने एक औरत बाल खोले खड़ी थी। ये मेरा घर है। अगर इन लोगों को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम सब मारे जाओगे। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। हाँ 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 हाँ, हम जाते हैं यहाँ से। चलो भागो, यहाँ से भागो भागो। बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली। हम बस अभी यहाँ से चले जाते हैं, हमें माफ कर दो, हम बगैर इजाजत आपके घर में रहे। तुम लोग रुक जाओ,
तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को यहाँ रहने की इजाजत है। तुम लोग यहाँ रह सकते हो। आज तक यहाँ जो भी आया है इस घर को लूटने की घर से आया है, लेकिन पहली बार कोई इस घर में आया और इस वीराने घर को आबाद किया बगैर किसी लालच के। इस घर को साफ किया। तुम लोग दिल के साफ हो, एक दूसरे की इज्जत करते हो, एक दूसरे से प्यार और एहसास करते हो, इसलिए तुम लोगों को इस घर में रहने की इजाजत है। मेरा खानदान भी तुम लोगों जैसा था, एक दूसरे से प्यार करने वाला, लेकिन वो सब मुझसे बिछड़ गए। इनकी यादों के साथ मैं हमेशा के लिए यहीं रह गई। तुम लोगों की वजह से मुझे मेरा खानदान मिला, तुम लोगों की वजह से मुझे वो सारी यादें मिली। ये घर आज से तुम्हारा हुआ। इस घर का हमेशा ख्याल रखना। मैं अब जा रही हूँ हमेशा के लिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। सलीम और इसके घर वाले खुशी खुशी इस हवेली में रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बगैर लालच, प्यार, मोहब्बत और एहतराम से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। इस तरह की मजीद अच्छी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल किड्स मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।